فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کاروان حلقے میں مجلس کی انتخابی مہم چلائی۔ اس دوران انہوں نے لگن شاہ ولی درگاہ، قاضی گلی، کمپلیٹ لینس، راما کانچ رحیم فنکشن ہال لینس اور مین روڈز اور سب لینس میں انتخابی مہم چلائی، مقامی عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے مجلس کو مضبوط کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ و حیدرآباد میں 13 مئی کو پولنگ ہونے والی ہے۔ اسی ضمن میں تمام پارٹیوں کی جانب سے انتخابی مہم چلائی جا رہی اور اسی کے حصے کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بھی اپنے علاقے کے کارپوریٹروں اور مقامی صدور و معتمدین کے ہمراہ اپنے حلقے میں انتخابی مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو مضبوط کرنے کی اپیل کی۔ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک 78 سالہ عمر کے شخص انٹرمیڈیٹ اوپن سے امتحان لکھ رہے ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والے ایلاگوڑ BSN میں لائن انسپیکٹر کے طور پر خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ سال 2007 میں وہ وظیفے پر سبکدوش ہو گئے۔ اس مہینے کی 25 تاریخ سے انٹرمیڈیٹ اوپن کے امتحانات کا آغاز ہوا تھا۔ ایلاگوڑ امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں زیورات کی دکان سے 50 تولے کے چاندی کے زیور کی خاتون نے چوری کر لی۔ یہ واردات دکان میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ اس خاتون نے دکان مالک کی توجہ ہٹاتے ہوئے یہ واردات انجام دی۔ اس بات کی شکایت دکان مالک نے پولیس سے کی، جس پر پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے CCTV فوٹیج کی بنیاد پر خاتون کی تلاش شروع کر دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وہ کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض معاف کرنے کے منصوبے پر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسانوں کا قرض 15 اگست سے پہلے معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی آمدنی میں اضافہ قرض معافی اسکیم پر عمل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آمدنی میں اضافہ، ٹیکس کی وصولی، فضول اخراجات میں کمی اور مالی نظم و ضبط برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک اور دیوتا کی قسم کھائی کہ 15 اگست سے پہلے قرض معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بد نظمی نہ کی گئی ہوتی تو انہیں یقین ہے کہ قرض معاف کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اٹالہ راجندر کے تبصروں کا جواب دیتے ہوئے کہ انہیں زمین بیچے بغیر قرض معاف کر دینا چاہیے، ریونت ریڈی نے سوال کیا کہ کیا راجندر چاہتے ہیں کہ کسانوں کے قرض معاف نہ کیے جائیں؟ چیف منسٹر کی یہ الفاظ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کئی مواقع پر کہا تھا کہ قرض کی معافی کے لیے 30 تا 40 ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں سوال کیا جا رہا کہ آمدنی میں اتنا زیادہ اضافہ کب ہوگا اور کب کسانوں کے قرض معاف کیے جائیں گے؟ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کسانوں کے قرض معافی کے لیے ریونت ریڈی کی مقررہ مدت 15 اگست کے لیے صرف 4 ماہ باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس مختصر مدت میں ریاست کی 40 ہزار کروڑ روپے کی آمدنی کیسے ہوگی؟ قرض معافی کی بات کرنے پر ریونت ریڈی اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کر رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ انتخابات سے بہت پہلے 9 دسمبر کو 2 لاکھ روپے کا قرض معاف کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حالیہ دنوں ایک نیوز چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ قرض معافی 1 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی اور ایک خصوصی کارپوریشن قائم کیا جائے گا اور کسانوں کے قرضوں کو اس میں منتقل کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کل تک کہہ رہے تھے کہ 15 اگست تک قرض معاف کر دیں گے، مگر اب قرض معافی کو آمدنی میں اضافے سے جوڑ رہے۔ یہاں سوال اٹھ رہا کہ کسانوں کے قرضوں کی معافی کے بارے میں حکومت مخلص ہے یا صرف وقت گزاری کر رہی؟ حج کمیٹی آف انڈیا سے جانے والے ایسے عازمین حج جنہوں نے ابھی تک تقریباً 2600 عازمین پورے حج اخراجات جمع نہیں کیے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ حج اخراجات کی تیسری اور آخری قسط 4 مئی 2024 یا اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI یا یونین بینک آف انڈیا UBI کی کسی بھی شاخ میں یا آن لائن سہولت کا استعمال کرتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی نے عازمین سے گزارش کی کہ اگر سفر حج کا
इरादा मुलतवी कर दिया है तो इसकी इतला दरख्वास्त मनसूखी फौरन हज कमेटी ऑफ इंडिया को दें ताकि मुंतजरीन हज को मौका मिल सके। हज इंतजामात में मसरूफ सऊदी अरब से हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IER ने आज़मीन से अपील की है कि वक्त बहुत कम है। 9 मई 2024 से हज फ्लाइट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फैसले में जल्दी करें और मज़ीद मालूमात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया या रियासती हज कमेटियों के दफातर से राब्ता कायम करें और किसी भी प्रोपेगंडे और अफवाह का शिकार ना हो। हल्के पार्लियामेंट करीमनगर के बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत साबित करती है कि उसने 6 जमानतों पर अमल किया है तो वो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। करीमनगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए संजय ने कहा कि कांग्रेस कायदीन मीडिया के जरिए अवाम को गुमराह करने के लिए चैलेंजेस के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल करेंगे और उन्होंने मंशूर को बाइबल, कुरान और भगवत गीता से ताबीर किया था, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत के अवाम को धोखा दिया। एक और प्रोग्राम में बंडी संजय ने कहा कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है और हिंदुत्व की अलंबरदार बीजेपी है। हल्के लोकसभा हैदराबाद के तेलुगु वोटर्स तक रसाई हासिल करने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने एक तेलुगु नगमा गीत के साथ सामने आया। दिलकश धुनों और मशहूर कुन मौसीकी के साथ 6 मिनट का ये नगमा मजलिस और उसके सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबियों पर रोशनी डालता है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल 5वीं बार इस हल्के से एक बार फिर कामयाबी के ख्वाह हैं। मजलिस ने इस म्यूजिक वीडियो को जारी किया था जिसमें ओवैसी के अपने हल्के के दौरे तमाम बरादरियों के अफराद से मुलाकातें, अवाम में उनके पतंग उड़ने के इशारे जो उनकी जमात मजलिस का इंतखाबी निशान है, इसको खुसूसियत के साथ दिखाया था। इस नगमे में बताया गया था कि मजहब और ज़ात के खत्ते नज़र ओवैसी किस तरह अवाम की खिदमत करते आए हैं। पुराने शहर के दौरों के दौरान हिंदुओं बिलखुसूस मंदिर इंतजामी कमेटी के अरकान की जानिब से ओवैसी की गुलपोशी और पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में हिंदुओं मर्द व ख्वातीन की उनसे मुलाकातों की तस्वीर को भी उजागर किया गया था। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर असदुद्दीन ओवैसी की जद्दोजहद पर मबनी इस नगमे के बोल भी हैं और गुज़िश्ता साल नवंबर में असम्बली इंतखाबात के दौरान भी तेलुगु बोलने वाले राय दहिंदों तक पहुंचने के लिए मजलिस ने तेलुगु में नगमा जारी किया था। हल्के लोकसभा हैदराबाद से मजलिस ने 1984 के बाद से कभी भी शिकस्त नहीं खाई। असद ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार 1984 में इस हल्के के MP मुंतखब हुए थे। वालिद की नासाजी सेहत के सबब असदुद्दीन ओवैसी 2004 में पहली बार इस हल्के से मुंतखब हुए थे। మానవత్వము కష్టమన్న ప్రతి ఇంటిలో వెలిగే వేగు చుక్కవో కష్టమన్న ప్రతి ఇంటిలో వెలిగే వేగు చుక్కవో ధర్మాన్ని విడువడు ఏ ధనముకు లొంగడు కులమతాలు ఎరుగడు కుతంత్రాలు చేయడు తన మన భేదం చూపని నిరుపేదల నేస్తమో బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లి నాడు అసదొత్తేనన్నా సామాన్యుల పక్షం నిలిచిన పెద్దన్నా అతంగి గుర్తు జెండలతో కదిలినాడు రా జనం బిడ్డ ఓవైసీ అసద్ భాయిరా కరోనా కాలం నందు కన్నీళ్లను తుడిచెరా ఆక్సిజన్ అందించి ఆయుష్ను పెంచరా ఆక్సిజన్ అందించి ఆయుష్ను పెంచరా హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ బిడ్డలకు ధైర్యమై ఇగురంతో స్వచ్ఛమైన పాలన అందిస్తాడో ఇగురంతో స్వచ్ఛమైన పాలన అందిస్తాడో దగపడ్డ బతుకులకు దారుసలాం అమ్మరా కష్టమంటూ చెప్పుకుంటే తీర్చేటి అండరా పేదల ఆకలి తీర్చే కమ్మనైన ప్రేమరా బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లి నాడు అసదొత్తేనన్నా సామాన్యుల పక్షం నిలిచిన పెద్దన్నా అతంగి గుర్తు జెండలతో కదిలినాడు రా జనం బిడ్డ ఓవైసీ అసద్ భాయిరా ఉన్నతంగా చదువుకున్న విద్యావంతుడురా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు జనమే తన ఎజెండా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు జనమే తన ఎజెండా ఎవ్వనికి తల వంచని దమ్మున్న నేతరా అక్రమ కేసులు పెట్టిన చెదిరిపోని గుండెరా అక్రమ కేసులు
ప్రజల్లోని గుండెరా. అవినీతి కుట్రలపై ప్రశ్నల విల్లంబురా, చెరసాలను బంధించిన పిడికిలెత్తినాడురా, సర్వం జనహితమతమై సాగుతున్న యుద్ధమో. బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లినాడు అసగొత్తేనన్నా, సామాన్యుల పక్షం నిలిచిన పెద్దన్నా, అతంగి గుర్తు జెండలతో కదిలినాడురా, జనం బిడ్డ ఓవైసీ అసద్భాయిరా. నిన్ను చూసి ఓర్వలేక నిందలెన్ని వేసినావు, ప్రగతి చూపి ప్రతిపక్షం నోర్లను మూయిస్తివో. ప్రగతి చూపి ప్రతిపక్షం నోర్లను మూయిస్తివో. ఓ శత్రువైన చేరదీసే గుణం గల్లవాడురా, చరితల్లో నిలిసిపోయే సేవలెన్నో చేసెరా. చరితల్లో నిలిచిపోయే సేవలెన్నో చేశారా. చల్ల సద్భాయి అంటే నే నిరుపేదల ఖడ్గమో, మనగోరిన వర్గాలకు కొండంతో ధైర్యమో, ప్రత్యర్థుల ఎత్తులను చిత్తు చేసే సింగమో. బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లి వస్తుండో బయలెల్లినాడు అసగొత్తేనన్నా, సామాన్యుల పక్షం నిలిచిన పెద్దన్నా, అతంగి గుర్తు జెండలతో కదిలినాడురా, జనం బిడ్డ ఓవైసీ అసద్భాయిరా. ఓహో బగ 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 మండేటి నిప్పుల దండై, ఎంఐఎం పార్టీ జెండ గుండెకు అండై. ఎంఐఎం పార్టీ జెండ గుండెకు అండై. అచల్ హైదరాబాదు గడ్డ మీద పొద్దై పొడిసే, అలు పెరుగని సేవకుడై ముందుకు నడిసే. అలు పెరుగని सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि सुबह की अवलिन सातों में तेंदुए ने गोलापल्ली के पास एयरपोर्ट की दीवार से छलांग लगाई। बताया गया है कि तेंदुए के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। जराये से पता चला कि जिस वक्त तेंदुए ने एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाई, वो फेंसिंग वायर से टकरा गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। सीसीटीवी कैमरों का जायजा लेने पर तेंदुए के गश्त करने का मंजर सामने आया। महकमे जंगलात के हुक्काम वहां पहुंच गए और एयरपोर्ट के करीब तेंदुए को पकड़ने के लिए इंतजामात किए गए। नेल्लूर लोकसभा हलके के वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार व रुकन राज्यसभा विजय साई रेड्डी ने कहा कि इन इंतखाबात में एक तरफ गरीब पसमानदा और दूसरी तरफ अमीर अफराद के दरमियान लड़ाई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समाज के गरीबों, दबे कुचले और पसमानदा अफराद के लिए लड़ रही, दूसरी तरफ तेलुगु देशम और बीजेपी इत्तेहाद सिर्फ अमीरों के लिए लड़ रहा। जबरदस्त अक्सरियत के साथ इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस की कामयाबी होगी। नेल्लूर पार्लिमानी हलके के लिए जल्द एक अलहदा मंशूर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू दावा करते हैं कि उनको सियासत का 40 साल का तजुर्बा है, लेकिन वो उन्हें एक इंतहाई खुद गर्ज सियासतदान समझते हैं जिनके पास कोई उसूल नहीं, कोई अखलाकी कदर नहीं, वो सिर्फ इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 6 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दिल्ली में कुल 57 पार्लिमानी हल्कों में इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आम इंतखाबात के 6ठे मरहले में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और मगरबी बंगाल की 8 निशस्तों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन निशस्तों पर नामजदगी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 6 मई है। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 7 मई को होगी और 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात के 6वें मरहले में दिल्ली की चांदनी चौक, शुमाली मशरक़ी दिल्ली, मशरक़ी दिल्ली, नई दिल्ली, शुमाल मगरबी दिल्ली, एससी, मगरबी दिल्ली और जनूबी दिल्ली, हरियाणा में अम्बाला एससी, कुरुक्षेत्र, सरसा एससी, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, आलाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डोमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज
SC, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर SC और भदोही बिहार में, वाल्मीकि नगर, मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज SC, सेवान और महाराजगंज झारखंड में, गोंडिया, धनबाद, रांची और जमशेदपुर उड़ीसा में, संबलपुर, केओंझर ST, ढेंकानाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर मगरबी बंगाल में, तामलुक, कांती, घाटल, झारग्राम ST, मेदिनीपुर, प्रोलिया, बंकुरा, बिष्णुपुर SC इंतखाबी हलकों में 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान वोटिंग होगी। बिहार और झारखंड के कुछ पोलिंग स्टेशनों में मुकामी हालात के मुताबिक शाम 4 या 5 बजे तक वोटिंग होगी। 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। यूरोपीय यूनियन ने हिंदुस्तानी मसालों समेत 527 फूड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी, जो भारतीय मईशत के लिए एक बड़ा धक्का साबित होगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के फूड सेफ्टी हुकाम की जानिब से किए गए टेस्टों में यह इंकशाफ हुआ कि भारतीय फूड प्रोडक्ट्स की एक काबिल जिक्र तादाद में एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है, जो एक किस्म का कैंसर पैदा करता है। ये मामला उस वक्त नुमाया होकर सामने आया जब मारूफ हिंदुस्तानी मसालेजात ब्रांड्स बशमूल MDH और एवरेस्ट की जांच पड़ताल की गई और ये मालूम हुआ कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड नामी केमिकल मुकर्ररा हद से ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इससे कबल सिंगापुर फूड एजेंसी और हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने इंकशाफ किया था कि हिंदुस्तानी फूड प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड मुकर्ररा हद से ज्यादा मिकदार में मौजूद है, जिस पर दोनों ने मुमालिक ने हिंदुस्तानी मसालों पर पाबंदी लगाई। हांगकांग फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने सार्फिन को खबरदार किया कि एवरेस्ट फिश करी मसाला समेत 4 किस्म के मसाले ना खरीदें। अब यूरोपीय यूनियन ने भी 527 से ज्यादा हिंदुस्तानी फूड प्रोडक्ट्स में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 3.5 सालों के दौरान वसी सतह पर हिंदुस्तानी फूड प्रोडक्ट्स की जांच की, जिनमें गिरेदार मेवे और तिल के बीज, जड़ी बूटियां और मसाले, ग़िज़ाई खुराक 48 और दीगर मुतफर्रिक़ खाने की मसनूआत 34 शामिल थी। टेस्टों से ये बात सामने आई है कि इन हिंदुस्तानी मसनूआत की एक बड़ी तादाद में एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है, जिसने यूरोपीय यूनियन को कार्रवाई करने पर मजबूर किया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन 2011 में इस केमिकल पर पाबंदी लगा चुका है। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि RSS इसके क़याम से रिजर्वेशन की हिमायत में रहा है। उन्होंने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके नादरगुल के विद्या भारती व विज्ञान स्कूल में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब करते हुए ये रिमार्क्स किए। उनके ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त सामने आए जब कांग्रेस ने दावा किया कि BJP मुल्क में रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। RSS सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता साल नागपुर में ये कहा गया था कि रिजर्वेशन को बरकरार रखा जाए क्योंकि समाज में इम्तियाज है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार मखसूस ग्रुप्स को रिजर्वेशन देने का कभी भी मुखालिफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर गश्त करवाया जा रहा, जिसमें यह दावा किया जा रहा कि संघ परिवार रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत है और झूठ है, और इस गुमराह कुन वीडियो के जरिए किए जाने वाले दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। रिजर्वेशन तर्ज जिंदगी या समाजी मौक़िफ़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए गए। भागवत का ये बयान BJP और कांग्रेस के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग के सिलसिले में सामने आया। भागवत ने कहा कि उन्होंने दस्तूर के मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन के खिलाफ कभी बात नहीं की। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा में 3 रिहायशी इमारतों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 15 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। ये इतला फ़लस्तीन की सरकारी खबरसा एजेंसी वफा ने दी है। मकामी ज़राए ने बताया कि कई दीगर लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और सिविल डिफेंस की टीमें उन्हें बचाने के लिए मजबूर हैं और काम कर रही हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 66 फ़लस्तीनी हलाक और 138 ज़ख्मी
हुए। बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फलस्तीन तनाज़ा शुरू होने के बाद से हलाकतों की कुल तादाद 34,454 तक पहुंच गई और 77,575 अफराद जख्मी हुए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।